پاکستان میں گرے لسٹ میں برقرار FATF کا فیصلہ 27 میں سے 21 نکات پر عمل درآمد ہو چکا، باقی 6 نکات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ 3 روزہ ورچوئل اجلاس کے اختتام پر صدر FATF کا خطاب، پاکستان فروری تک گرے لسٹ میں رہے گا، اگلے اجلاس میں باقی نکات کے بارے میں چیک کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بلیک لسٹ میں ڈھیل دھکیلنے کے بھارتی عزائم ناکام ہو گئے، دنیا اس بات کا اعتراف کر چکی کہ پاکستان نے دہشت گردوں کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ روکنے کے لیے ہر سطح پر اقدامات اٹھائے ہیں، بھارت کو اپنے اقدامات پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس غیر قانونی قرار، سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ ریفرنس بدنیتی پر مبنی قرار نہیں دیا جا سکتا، کوئی بھی جج قانون سے بالاتر نہیں۔ ریفرنس فیض آباد دھرنا کیس نہیں، لندن جائیدادوں کی بنیاد پر بنا، کوئی شک نہیں کہ ججز کے خلاف ریفرنس کو خفیہ رکھنا چاہیے۔ صدر مملکت نے آئین اور قانون سے تجاوز کیا، 224 صفحات پر مشتمل فیصلے میں ریمارکس۔ نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے برطانیہ بھی جانا پڑا تو جاؤں گا، بورس جانسن سے بھی بات کر سکتا ہوں، وزیر اعظم عمران خان کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ الیکشن پر بھی تیار ہوں مگر NRO نہیں دوں گا، کنٹینرز پر چڑھا ٹولا اگر میری تعریف کرے تو توہین سمجھوں گا، تعریف کرنے کا مطلب جیسے میں نے بھی کوئی جرم کیا ہو۔ نواز شریف کی اصل جگہ جیل، 15 جنوری کو جیل میں ہی ہوں گے، شبلی فراز کا دعویٰ مریم نواز کا جھوٹا قرار دے دیا، کہا لیگی رہنما کراچی معاملے پر متضاد باتیں کر رہی ہیں، جھوٹ تو ان کی گھٹی میں ہے۔ صفدر کو سندھ پولیس نے گرفتار کیا، یہ تو آپس میں مخلص نہیں، سیاست کھیل رہے ہیں۔ عمران خان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا، ہمارا مقصد گلگت بلتستان کو عمران خان سے بچانا ہے، بلاول بھٹو زرداری کا گلگت بلتستان میں کارکنان سے خطاب، حکومت پر کڑی تنقید، کہا پیپلز پارٹی کی جدوجہد عوام کے حقوق کے لیے ہے، موجودہ حکمرانوں نے 50 لاکھ گھر بنانے کا کہا مگر غریبوں سے چھت چھین لی، عوام کی آواز اب اسلام آباد کو سننا پڑے گی۔ عمران خان ایک مہرہ وہ ہدف نہیں، حکومت نئے سال سے قبل گھر بھیج دیں گے، مریم نواز کا اعلان۔ کہتی ہیں کہ شہباز شریف کے بغیر پنجاب لاوارث ہو گیا، پنجاب کی خدمت احسان نہیں، عوام کا حق ہے جو انہیں نہیں مل رہا، شہباز شریف کو بھائی سے نہ لڑنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حسین اقبال اپنی ہی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے خلاف بول پڑے، کہتے ہیں کہ 2013 میں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، تمام کارخانے اور فیکٹریاں بند تھیں، 2013 میں جو پاکستان ہمیں ملا وہ سب کو یاد ہے، ملکی معیشت تباہ ہو چکی تھی، کوئی نیا منصوبہ نہیں لگ رہا تھا، ہم نے 4 برسوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے، ملک سے اندھیرے ختم کرنے کو تبدیلی کہتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی اپنی کرسی چھوڑ کر کسی اور کو دے دیں، ملک آئین کے مطابق چلے گا تو ترقی کرے گا، عوام کی بات اسمبلی میں نہیں ہو سکتی تو پھر سڑکوں پر ہوگی، آج پاکستان کا ہر شہری پریشان ہے، ملک کی بد نصیبی ہے کہ ایسے حکمران میسر آئے، حکومت بتائے آٹا اور چینی کیسے مہنگی ہوئی۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں مکس اچار پارٹی کی آشا تماشا اور بھاشا پورا پاکستان جان چکا، آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن میں شامل تمام لوگ منافقت کے بے تاج بادشاہ ہیں، ان کی خواہش NRO ہے، ان کا تماشا کرپشن لوٹ مار اور منی لانڈرنگ کا ہے اور ان کی بھاشا ووٹ کو عزت دو ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے گورنر سندھ عمران اسماعیل اور بزنس مین عقیل کریم کی ملاقات، سندھ کے اراکین قومی صوبائی اسمبلی بھی ملے، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ملک میں صنعتی عمل کی بحالی اور اولین ترجیح ہے، معاشی عمل میں تیزی آئے گی، وزیر اعظم عمران خان سے سندھ سے تعلق رکھنے والے ممبران قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقات،
वजीर आजम की सरबराही में हुकूमती और पार्टी तर्जमानों का इजलास भी हुआ। रऊफ हसन वजीर आजम इमरान खान के मुआवन खसूसी बराए इत्तलात और नशरियात मुकर्रर। काबीना डिवीजन ने रऊफ हसन की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तकर्री एजाजी तौर पर की गई है। मस्तूम के इलाके दश्त में CTD और हसास इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द हलाक, 2 एहलकार जख्मी। खुदकुश जैकेट्स, असलहा, धमाकाखेज मवाद बरामद कर लिया गया। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए FIA ने इश्तिहारात जिस्म कर दिए। जाती उमरा और मॉडल टाउन की रिहाइश गाहों पर इश्तिहार लगाए गए। जाती उमरा अमला को भी इश्तिहार वसूल करवाया गया। हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। नैब की दरख्वास्त पर बेंच 27 अक्टूबर को समाअत करेगा। शहबाज शरीफ पर बेनामी अकाउंट से अरबों रुपए गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल करने के इल्जाम हैं। सुप्रीम कोर्ट का नैब के ज़ेरे इल्तवाब मुकदमात पर नोटिस। एहतसाब अदालत लाहौर से ट्रायल में ताखीर की वजूहात पर मबनी रिपोर्ट तलब कर ली। नैब मुकदमात में मुलजिमों को तवील अरसा ज़ेरे हिरासत रखना नाइंसाफी करार दे दिया। करप्शन का इल्जाम है तो जायदाद, अकाउंट्स मुंजमद और पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है। जस्टिस रशिया आफरीदी के रिमार्क्स। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मुल्क में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ खड़े हैं। वफाकी हुकूमत जज़ायर से मुताल्लिक आर्डिनेंस फौरी वापस ले। हम तो नैब में पेश हो रहे हैं। हम पहले कभी डरे ना अब डरेंगे। एहतसाब से हम कभी नहीं घबराए। बिला इम्तियाज एहतसाब या तो सद का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कौमी असम्बली के इजलास से अपोजिशन का वॉकआउट। नवीद कमर कहते हैं बोलने की इजाजत ही नहीं दी जाती। ऐवान अवामी मसाइल के हल के लिए किरदार अदा नहीं कर रहा। बाबुर अवान बोले ऐवान सीटियां बजाने के लिए नहीं, मीटिंग्स में ये शिरकत ही नहीं करते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं अपोजिशन अपनी करप्शन बचाने में मसरूफ। वज़ीर आज़म इमरान खान किसी को NRO नहीं देंगे। अपोजिशन की अफरा तफरी और इंतशार की सियासत नाकाम हो चुकी। हुकूमत तमाम इलाकों की यकसा तरक्की की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बिला इम्तियाज एहतसाब और शफाफियत तहरीक इंसाफ का अवाम से वादा है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 30 करोड़ 40 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज से चलने वाला प्रोग्राम पब्लिक सेक्टर के माली अमूर में बेहतरी लाएगा। प्रोग्राम के तहत विफाक और पंजाब में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। पाकिस्तान को महसूलात इकट्ठे करने में आसानी होगी। आलमी बैंक का एलामिया जारी। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा। मुजफ्फराबाद, हैदराबाद, कराची, गिलगित में भी कोरोना फैलने लगा। NCOC की रिपोर्ट। 1 सितंबर को पंजाब में अमवात का तनासुब 1.6 था, अब 6% है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की इजलास में ब्रीफिंग। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 13 मरीजों का इंतकाल। अमवात 6715 हो गई। मजीद 736 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,26,216 मरीज। 3,09,646 सेहतयाब। जेर इलाज मरीजों की तादाद 9,855 हो चुकी। दुनिया भर में कोरोना से 11,44,000 हलाकतें। 4 करोड़ 21 लाख मरीज। अमेरिका में 2,28,430। ब्राजील में 1,56,000। भारत में 1,18,000। मैक्सिको में 88,000। स्पेन में 34,521। फ्रांस में 34,210 और सऊदी अरब में 5,250 अमवात। फैसलाबाद में डाकुओं की फायरिंग। कवाल, शेरमियादाद और इनका बेटा जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। डाकू मोबाइल फोन और 2 लाख रुपए नकद छीन कर फरार हो गए। RPO ने नोटिस ले लिया। CPO से रिपोर्ट तलब कर ली।
डाकुओं की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया। बजार में कौमी शाहराह पर बस में आग लग गई, 5 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। बस कराची से पेशीन जा रही थी, आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। ट्रंप और जो बाइडेन का आखिरी सदारती मुबाहिसा, कौमी सलामती पर एक दूसरे पर इल्जाम। जो बाइडेन ने कहा कि लोग ट्रंप के दौर में कोरोना के साथ मरना सीख रहे हैं। रूस, चीन और ईरान अमेरिकी इंतखाबात में मुदाखलत कर रहे हैं। जो भी मुल्क ऐसा करेगा इसे कीमत चुकाना पड़ेगी। सदर ट्रंप ने कहा कि कुछ ही दिनों में कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। हम वायरस के साथ जीना सीख रहे हैं। अफगानिस्तान में अमन ख्वाब बन गया, फौजी चेकपोस्ट पर दहशतगर्दों का बड़ा हमला, 20 अफगान फौजी मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी। हमला आवर और 6 एहलकार, असलहा और गाड़ी भी साथ ले गए। और दुनिया के सबसे बड़े फवारे अल नखला का इफ्तिताह कर दिया गया। पाम फाउंटेन 105 मीटर ऊंचा और 14,000 मुकाम फीट वसी है। तकरीब के दौरान आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकर और मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान ने 27 में से 21 नकात पर अमल दरामद किया। पाकिस्तान को बाकी 6 नकात पर अमल दरामद करना पड़ेगा। पाकिस्तान में 27 नकात पर अमल दरामद की पेशरफ्त और उसकी ख्वाहिश पाई जाती है। FATF के 3 रोजा इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पाकिस्तान के इकदाम का जायजा लिया गया। वर्चुअल इजलास के इख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर FATF मार्क्स प्लेयर ने बताया कि पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल रहेगा, जबकि पाकिस्तान ने 27 में से 21 निकात पर अमल दरामद किया है। ताहम पाकिस्तान को बाकी 6 निकात पर अमल दरामद करना पड़ेगा। मार्क्स प्लेयर का कहना था कि पाकिस्तान फिलहाल फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में रहेगा और अगले इजलास से पहले चेक करेंगे कि पाकिस्तान ने इन निकात पर मुअस्सर तरीके से अमल दरामद करवाया है या कि नहीं। पाकिस्तान तमाम 27 निकात पर अमल दरामद को यकीनी बना लेगा जब एक टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी, जिसका मकसद जमीनी हकाइक का जायजा लेना होगा। पाकिस्तान ने जिन 6 निकात पर अमल करना है वो बहुत अहम है। हुकूमत पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई है कि इन पर अमल दरामद करेगी और पाकिस्तान निकात पर अमल दरामद के हवाले से पेशरफ्त कर रहा है। पाकिस्तान में 27 निकात पर अमल दरामद की पेशरफ्त और इसकी ख्वाहिश पाई जाती है। वफाकी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत की जानिब से पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में धकेलने के अज़ाइम नाकाम हो गए हैं, जबकि दुनिया इस बात का इतराफ़ कर चुकी है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए हर सतह पर इक़दामात उठाए हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि 27 में से
21 पर 100% अमल कर चुके हैं। हमारे इकदामात का एतराफ दुनिया करती है। भारत के अज़ाइम थे कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाए। भारत इस कोशिश में नाकाम हो गया। भारत को अपने इकदामात पर नजरसानी करना होगी। इमरान खान ने पहले दिन कहा था कि अमन की तरफ 1 कदम बढ़ाएं, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। इस माहौल में क्या मुज़ाकरात होंगे? कराची वाक़े पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इंक्वायरी हो रही है और तहकीकात मुकम्मल होने तक हमें इंतजार करना चाहिए। वाक़े की वीडियो सामने आ चुकी है जिससे बहुत से मफरूजे दम तोड़ गए। नवाज शरीफ को वापस आकर केसेस का सामना करना चाहिए, वो मौका ज़ाय ना करें। लंदन में नवाज शरीफ पूरी तरह सियासी सरगर्मी में मुलविस हो चुके हैं। बरतानिया को कार्रवाई करनी चाहिए। बरतानिया को अपने कवानीन के मुताबिक फैसला करने की दरख्वास्त की है। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को गैर कानूनी और कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस काजी ईसा के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मुबनी करार नहीं दिया जा सकता। कोई भी जज कानून से बालातर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अता उमर बंदियाल ने तहरीर किया। उमर अता बंदियाल ने फैसला 224 सफ़ात पर मुश्तमिल किया और आगाज में सूरत निसा का हवाला दिया गया। फैसले में कहा गया कि रेफरेंस फैजाबाद धरना केस नहीं, लंदन जायदादों की बुनियाद पर बना। कोई शक नहीं कि जजीज के खिलाफ रेफरेंस को खुफिया रखना चाहिए। सदर ममलिकत ने आइन और कानून से तजावुज किया। रेफरेंस के मवाद की तहकीक करने वाले सदर ममलिकत को ब्रीफिंग दे सकते हैं, मशवरा नहीं। तफसीली फैसले में कहा गया कि फैसले के 7 रोज के अंदर इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर खुद मुतल्लिका नोटिस दूसरी जानिब काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चों को जारी करें। FBI नोटिस में जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चों से बरतानिया में खरीदारी और जायदादों के जराए आमदन पूछे। ये नोटिस जस्टिस काजी फायज ईसा की सरकारी रिहाइशगाह पर भी भेजे जाएं। FBI के नोटिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चे मुतल्लिका तफसीलात पर जवाब दें। फैसले के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया पब्लिक सर्वेंट नहीं है। इनकी अहलिया के खिलाफ मामला जुडिशल काउंसिल में नहीं चल सकता। सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस दायर करने में अपने सवाबदीदी इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ से सुनाए गए फैसले पर जस्टिस यहिया आफरीदी ने इख्तलाफी नोट तहरीर किया, जबकि जस्टिस फैसल अरब ने अलग नोट तहरीर किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानिया जाना पड़ा तो खुद जाऊंगा। बरतानवी हम मनसब बोरिस जॉनसन से बात भी कर सकता हूं। इलेक्शन समेत हर चीज के लिए तैयार हूं। NRO नहीं दूंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बताते रहते थे कि ये लोग इनसे मिलने आते रहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा, अदलिया से 7 अरब रुपए के जमानती बॉन्ड्स मांगने की इस्तदा की। अदलिया ने हमारी बात नहीं मानी और शहबाज शरीफ की गारंटी ले ली। लोगों का इक्तदार में आने का मकसद अपने खानदानों को नवाजना है। साबिक हुक्मरानों के करप्शन से मुल्क कर्जों में डूब गया। हमारे लिए बड़ा चैलेंज मकरूज मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करना है। इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ ही नहीं इसहाक डार भी भागे हुए हैं। कंटेनर्स पर चढ़ा हुआ ये टोला अगर मेरी तारीफ करे तो तौहीन समझूंगा। इनका मेरी तारीफ करने का मतलब जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो। उनका 1 पॉइंट एजेंडा इमरान खान पर दबाव डालो कि हमारी जान छोड़ दे। 10 साल पहले कहा था ये सब इकट्ठे होंगे। कौम पहले भी खिताब में कहा कि ये सब इकट्ठे हो चुके हैं। सेनेटर शिबली फराज ने दावा किया है कि नवाज शरीफ 15 जनवरी को जेल में होंगे। मरीम नवाज ने कराची मामले पर मुतसाद बातें की। झूठ तो उनकी गुट्ठी में है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज ने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये आपस में एक दूसरे से मुखलिस नहीं और सियासत खेल रहे हैं। मरियम सफदर वो नहीं है जिनके बारे में और उनके वालिद के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में सुप्रीम कोर्ट बड़े वाज़ेह अल्फाज में इनको झूठा करार दे चुकी है। जो कैलिबरी क्वीन का खिताब इन्होंने अपने लिए बड़ी मेहनत से हासिल किया, क्या वो लोगों के जहन में महफूज नहीं? ये रोज आ जाते हैं इनके जो दरबारी हैं, 1 बजे एक आ जाता है झूठ बोलता है, दूसरा 2 बजे आ जाता है झूठ बोलता है, 3 बजे आता है झूठ बोलता है। मुझसे तो मेरा छोटा बेटा पूछता है कि बाबा आप इनको जवाब क्यों देते हैं, ये तो सारे झूठे हैं।
یہ تو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہوا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. یہ تو ان کے نواز شریف نے فلور آف دا ہاؤس پہ جھوٹ بولا. کیا مریم نواز یا مریم صفدر اوان ایون فیلڈز کی بینیفیشل اونر نہیں ہے؟ کیا یہ وہی خاتون نہیں ہے جس نے کہا تھا کہ باہر تو چھوڑیں ہمارے اس ملک میں بھی اثاثے نہیں ہیں؟ یہ جتنے بھی آپ کے انہوں نے اپنے دائیں بائیں بشمول ان کے لیڈر کے، نواز شریف نیب زدہ کنوکٹڈ، شاہد خاقان عباسی کنوکٹڈ نیب زدہ، ثناء اللہ نیب زدہ، احسن اقبال نیب زدہ، جتنے بھی ان کی خواجہ آصف نیب زدہ، یہ سارے جتنے بھی آ کے جو جھوٹ اور کرپشن کے ماہر ہیں، جنہوں نے اس ملک کے عوام کا پیسہ لوٹا ہے. کہنے کو تو یہ ووٹ لے کر آئے تھے، بات تو یہ جمہوریت کی کرتے ہیں، لیکن جب یہ حکومت میں تھے تو انہوں نے اسی ووٹ کے تقدس کو پامال کیا. اب کہتے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں جو تباہی عمران خان نے ملک میں کی، اس سے گلگت بلتستان کو بچانا ہے. عمران خان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا، ہم ان کو موقع نہیں دے سکتے. گلگت بلتستان میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا 50 لاکھ گھر بنانے کا کہا گیا، لیکن غریبوں کے سر سے چھت چھین لی گئی. آج تک کوئی نوکری نہیں دی گئی. ہر ادارے کے ملازم احتجاج کر رہے ہیں. عوام کی آواز اسلام آباد کو سننا پڑے گی. یہ نہ صرف ایک الیکشن مہم ہے بلکہ آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد بھی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا ہم دور حکومت میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کیا گیا. اگر سب معیشت میں حصہ ڈالیں گے تب ہی ملک ترقی کرے گا. پیپلز پارٹی آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہے. امید کرتا ہوں مجھے گلگت بلتستان کے عوام نا امید نہیں کریں گے اور میرا ساتھ دیں گے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ایک بار نئے سال سے پہلے حکومت کو گھر بھیجنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان ایک مہرا ہے اور وہ ہمارا ہدف نہیں ہے. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ کراچی واقعے کے بعد عمران خان کہاں ہیں؟ ثابت ہو گیا یہ بڑوں کی لڑائی ہے. چاہیے شہباز شریف نے دل سے پنجاب کی خدمت کی. یہ احسان نہیں، عوام کا حق ہے جو انہیں ملا. نواز شریف کے بغیر پاکستان اور شہباز شریف کے بغیر پنجاب لاوارث ہو گیا. شہباز شریف کو بھائی سے نہ لڑنے کی سزا دی جا رہی ہے. مزید ان کا کیا کہنا تھا آپ بھی سنیے. دیکھیں یہ بچوں کا مسئلہ تو بہت بعد میں آتا ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ روٹی 30 روپے کی ہونے جا رہی ہے، آٹا غائب ہے مارکیٹ سے، اور لوگ دوائیوں سے 500-600 گنا دوائیوں کی پرائس میں اضافہ ہو گیا. آپ کو وزیر اعظم کہاں نظر آیا؟ جب آپ کو نواز شریف صاحب نے یہ کہا گجرانوالہ کے جلسے میں بھی اور اس سے پہلے بھی کہ عمران خان ہمارا ہدف نہیں ہے، عمران خان راستے میں سے ہٹ جائے، بڑوں کی لڑائی میں بچوں کا کام نہیں ہے، تو وہی کر کے دکھایا انہوں نے. اب یہ مجھے بتاؤ کراچی میں جو حملہ ہوا میرے اوپر اور کراچی میں جو اسٹیٹ ابو اسٹیٹ سامنے آئی اس میں کہاں ہے عمران خان؟ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ میں نہ کسی گنتی میں ہوں نہ میں کسی چیز میں ریلیونٹ ہوں. یہ 2-3-4 بڑے بڑے لوگوں کی لڑائی، اس میں عمران خان کہیں بھی نہیں ہے بھائی. نہ وہ ان بچوں کے ساتھ ہے، نہ وہ غریب کے جو چولہے بجھ گئے ہیں وہاں ہے. اور دوائیاں آپ دیکھو، ہر گھر میں ڈائبٹیز کا مریض ہے، ہر گھر میں شوگر کا مریض ہے. انسولن کتنی مہنگی ہو گئی ہے، دوائیاں کتنی مہنگی ہو گئی، لوگوں کا مرنا بھی مشکل ہو گیا. اب روٹی 30 روپے کی ہونے جا رہی ہے، آٹا چینی اتنی مہنگی ہو گئی. اس گورنمنٹ کا کوئی چلو جعلی صحیح، نالائق صحیح، لیکن کوئی دل میں درد ہوتا ہے، کوئی احساس ہوتا ہے عوام کا. آپ جواب دو ان لوگوں کو. اتنی کرمنل ایپتھی اچھی بات نہیں ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا. اور 2 سال میں ان کا جو حال ہو گیا ہے وہ اس لیے ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے نہیں ہوا، ان جو اپوزیشن کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ عوام کی بد دعاؤں کی وجہ سے. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال اپنی ہی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے خلاف بول پڑے. کہتے ہیں کہ 2013 میں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، تمام کارخانے اور فیکٹریاں بند تھیں. 2013 میں جو پاکستان ہمیں ملا وہ سب کو یاد ہے. ملک کی معیشت تباہ ہو چکی تھی، کوئی نیا منصوبہ نہیں لگ رہا تھا. ہم نے ملک کو اندھیروں سے باہر نکالا. 4 برسوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے. مسلم لیگ نون کے خلاف دھاندلی نہ کی جاتی. اگر ہماری
हुकूमत न रोकी जाती तो आज हम तरक्की के अंदर हिंदुस्तान को भी पीछे छोड़ गए होते। पाकिस्तान एशिया के अंदर तेज तरीन तरक्की करने वाला मुल्क बन चुका होता। चूंकि अल्लाह ताला ने हमें सीपैक की सूरत में एक ऐसा मकनातीस दिया था जिससे पूरी दुनिया का सरमाया पाकिस्तान में आ रहा था, लेकिन इमरान नियाजी ने आके सीपैक को भी रोल बैक कर दिया। बल्कि मैं ये कहूंगा इसको बैनुल अक़वामी साजिश के जरिए पाकिस्तान पे बिठाया गया, फॉरेन फंडिंग के जरिए इस पर करोड़ों अरबों रुपए लगाए गए बाहर से, ताकि ये सीपैक को बंद करे और पाकिस्तान की तरक्की को बंद करे। और अब आके आप देखें पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है। पाकिस्तान की तरक्की रुक चुकी है। आज पाकिस्तान की मईशत क्रैश हो गई है, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है, पाकिस्तान में महंगाई बेकाबू हो चुकी है। और ये जो कहता था कि जब महंगाई होती है तो वजीर आजम का इसका मतलब है वजीर आजम चोर होता है, करप्ट होता है। तो जितनी महंगाई पिछले 2 सालों में पैदा हुई है, इसका मतलब तो ये है कि इतना बड़ा चोर आज तक किसी दुनिया में हुक्मरान नहीं हुआ जितना इमरान अहमद नियाजी है। शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं स्पीकर कौमी असेंबली अपनी कुर्सी छोड़कर किसी और को दे दे, मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा तो तरक्की करेगा। अवाम की बात असेंबली में नहीं हो सकती तो फिर सड़कों पर होगी। महंगाई की बुनियादी वजह 2018 में इलेक्शन की धांधली है। आज पाकिस्तान का हर शहरी परेशान है। मुल्क की बदनसीबी है कि ऐसे हुक्मरान मुयस्सर आए। हुकूमत बताए कि आटा और चीनी कैसे महंगी हुई। आज गैर मामूली हालात है मुल्क के अंदर, ये मामूली बातें नहीं है। मुझे जरा हाथ उठा के बताएं जो लोग आज महंगाई से तंग हैं, हाथ उठा के बताएं। पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। मैं इमरान खान से पूछता हूं कि ये आटा 75 रुपए का कैसे हुआ, ये बताओ पाकिस्तान के अवाम को। ये पाकिस्तान के अवाम को बताओ कि चीनी 110 रुपए की कैसे हुई। पाकिस्तान के अवाम को बताओ कि उनके बिजली के बिल दुगने कैसे हो गए। पाकिस्तान के अवाम को बताओ कि आज गरीब आदमी या आटा खरीदे या बिजली का बिल अदा करे। तुमने पाकिस्तान को यहाँ पहुँचा दिया है। हर शख्स परेशान है। पाकिस्तान में अब जहाँ जाएं लोग यही बात कहते हैं कि कब इस हुकूमत से जान छुड़ाएंगे। आज इमरान खान ने 2 साल में पाकिस्तान को वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन नहीं पहुँचा सकते थे। ये बदनसीबी है मुल्क की, ये बदनसीबी है कि हमें ऐसे हुक्मरान मिले। आज आपकी महंगाई की बुनियादी वजह, आपकी महंगाई सिर्फ इसलिए है कि 2018 में इलेक्शन में धांधली की गई, इलेक्शन चोरी किया गया। स्पीकर साहब ये बात याद रखें, आप कसूरवार हैं। अगर आपको दबाव है वज़ीर आज़म का, वो कहता है कि किसी को बात मत करने दो, वो अपने वजीरों को कहते हैं कि इनको गालियां निकालो, अवाम की बात ना हो सके, महंगाई की बात कौमी असेंबली में ना हो सके, पाकिस्तान की बात कौमी असेंबली में ना हो सके। अगर स्पीकर साहब आप पर दबाव है तो इज्जत का रास्ता है कि अपनी कुर्सी छोड़ दे किसी और के हवाले। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मिक्स अचार पार्टी की आशा, तमाशा और भाषा सारा पाकिस्तान जान चुका है। फयाजुल हसन चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन में शामिल तमाम लोग मुनाफिकत के बेताज बादशाह हैं। इनकी आशा और ख्वाहिश एनआरओ की है। इनका तमाशा करप्शन, लूटमार और मनी लॉन्ड्रिंग का है और इनकी भाषा वोट को इज्जत है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे
खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क में सनती अमल की बहाली खुसूसन छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वजीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और बिजनेसमैन अकील करीम जोधी ने मुलाकात की। वजीर आज़म का कहना था कि मुल्क में सनती अमल की बहाली खुसूसन छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सनतों को सहूलियात की फराहमी से न सिर्फ मुआशी अमल में तेजी आएगी बल्कि नौजवानों के लिए नौकरियों के मौके भी पैदा होंगे। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के मामले पर FIA ने जाती उमरा और मॉडल टाउन की रिहाइश गाहों पर इश्तिहार जिस्मा कर दिया। इश्तिहार लगाने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। FIA ने अदालती हिदायत पर अमल दरामद करते हुए नवाज शरीफ के जाती उमरा और मॉडल टाउन रिहाइश गाहों पर इश्तिहार लगाए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर चौधरी एजाज ने टीम के हमरा इश्तिहार जज्बा किए। जाती उमरा अमले को भी इश्तिहार वसूल करवाया गया। साबिक वज़ीर आज़म की तलबी का इश्तिहार चंद रोज कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी जज्बा किया गया था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने के लिए नैब की दायर करदा दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। शहबाज शरीफ का नाम लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर ECL से निकाला गया था, जिस पर नैब ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में बेंच 27 अक्टूबर को समाअत करेगा। शहबाज शरीफ पर इल्जाम है कि उन्होंने बेनामी अकाउंट से अरबों रुपए गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल किए, जबकि अपने फ्रंटमैन और मुलाजमीन और मनी चेंजर्स के जरिए अरबों रुपए के असासे भी बनाए। नवा माह के आगाज में वफाकी काबीना ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब के ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर नोटिस ले लिया। एहतसाब अदालत लाहौर से ट्रायल में ताखीर की वजूहात पर मबनी रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि नैब मुकदमात में मुलजिमों को तवील अरसा ज़ेर हिरासत रखना नाइंसाफी होगी। सुप्रीम कोर्ट में आमदन से जायद सासाजात केस की समाअत हुई। मुलजिम के वकील आबिद साकी ने अदालत को बताया कि उनके मौक्किल 16 माह से जेल में हैं, लेकिन आज तक उनके खिलाफ मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ। 80 दूसरे नैब रेफरेंसेस भी ज़ेर इल्तवा हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, करप्शन के इल्जाम पर इतना तवील अरसा जेल में नहीं रखा जा सकता। करप्शन का इल्जाम है तो जायदाद, अकाउंट्स, मुंजमद और पासपोर्ट जब्त किए जा सकते हैं। मुलजिम को जेल में रखना क्यों जरूरी है? जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क दिए कि करप्शन केसेस के अकॉर्डिंग इंसानियत के खिलाफ जुर्म नहीं, मुलजिमान को गिरफ्तार करने के अलावा भी तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। नैब मुकदमात में मुलजिमान को तवील अरसा हिरासत में रखना ना इंसाफी होगी। अदालत ने चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल आबिद साकी को मुआवनत की हिदायत करते हुए एहतसाब अदालत को हुक्म दिया कि नवंबर के तीसरे हफ्ते तक रिपोर्ट जब पेश की जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मुल्क में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ खड़े हैं। मुल्क को जब भी जरूरत पड़ी बुखला आगे आए। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को आइन दिया। विफाकी हुकूमत जज़ायर से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस फौरी वापस ले। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हाई कोर्ट बार सखर से खिताब करते हुए कहा, हम तो नैब में पेश हो रहे हैं, हम पहले कभी डरे हैं ना अब डरेंगे, आज किसको डरा रहे हैं? एहतसाब हमसे हम कभी नहीं घबराए, जबकि बतौर वजीर आला सिंध असम्बली और अवाम के सामने जवाब दे हूँ। बिला इम्तियाज एहतसाब या तो सदका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुराद अली शाह का कहना था कि केस बाद में बनाया जाता है, गिरफ्तार पहले कर लिया जाता है। 1 साल से जायद हो गया खुर्शीद शाह गिरफ्तार है, लेकिन अभी केस नहीं बना। हर चीज़ का इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर दिया जाता है। अगर सब जिम्मेदारी ही हमारी है तो फिर हटो, हम संभाल लेते हैं।
قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد کیسر کی صدارت میں شروع ہوتے ہی اپوزیشن نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ اسد کیسر نے اجلاس پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح ایوان کو چلایا جا رہا ہے ایسے ایوان کی کارروائی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ہم عوام کے مسائل اٹھانا چاہ رہے ہیں، بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ ایوان عوامی مسائل کے حل کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہا۔ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے اور ہاؤس باوقار طریقے سے نہیں چلایا جاتا ہم واک آؤٹ کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما بابر اوان کا کہنا تھا کہ ہاؤس کو چلانے کے لیے اپوزیشن کو آسان نسخہ پیش کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں چلے گا کہ یہاں پر سیٹیاں بجائی جائیں اور میٹنگز میں شرکت نہ کریں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان چکسئی کہتے ہیں اپوزیشن اپنی کرپشن بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کسی کو NRO نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے قبائلی ضلع باجوڑ میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں اپوزیشن کو آڑے ہاتھ لیا۔ کہا کہ اپوزیشن کی افراتفری اور انتشار کی سیاست ناکام ہو گئی ہے۔ اپوزیشن اپنی کرپشن بچانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ حکومت تمام علاقوں کی یکساں ترقی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ بلا امتیاز احتساب اور شفافیت تحریک انصاف کا عوام سے وعدہ ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 30 کروڑ 40 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ عالمی بینک کے اعلامیہ کے مطابق اس قرض سے چلنے والے پروگرام پبلک سیکٹر کے مالی امور میں بہتری لائے گا، جبکہ پروگرام کے تحت وفاق اور پنجاب میں پبلک فائنانس مینجمنٹ سسٹم کو مضبوط کیا جائے گا۔ پاکستان میں محصولات اکٹھے کرنے میں آسانی ہوگی، جبکہ پروگرام ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو رجسٹرڈ کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ عالمی بینک کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ پروگرام سے کاروباری افراد کے لیے رجسٹرڈ ہونے کا عمل آسان ہوگا، جبکہ ادائیگیوں، ریفنڈز کی وصولی اور ٹیکس حکام کے خلاف اپیل کا سسٹم بہتر ہوگا۔ NCOC نے کہا ہے کہ مظفر آباد، حیدرآباد، کراچی، گلگت میں نئے کرونا کیسز کا تناسب زیادہ ہے۔ پنجاب کے اسپتالوں میں داخل ہونے والے کرونا مریضوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس ہوا۔ بتایا گیا کہ اسپتالوں میں زیر علاج تشویشناک مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ 1 ستمبر کو پنجاب میں اموات کا تناسب 1.6 تھا اور اب 6% ہے۔ پنجاب میں کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 1.92 سے بڑھ کر 1.33 ہو گئی ہے۔ NCOC نے کہا کہ پاکستان میں کرونا وبا کے باعث اموات کا تناسب 2.06% ہے۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 13 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 6,715 ہو گئی۔ مزید 736 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,26,216 ہو گئے۔ 3,09,646 مریض صحت یاب، جبکہ زیر علاج مریضوں کی تعداد 9,855 ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک روز میں 13 مریض انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 2,329، سندھ میں 2,591، خیبر پختونخوا میں 1,267، بلوچستان میں 148، گلگت بلتستان میں 90، آزاد کشمیر میں 85 اور اسلام آباد میں 205 مریض انتقال کر چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 736 افراد وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 1,02,253، سندھ میں 1,42,397 مریض زیر علاج ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 11,40,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 4,21,00,000 ہو گئی۔ 3,13,00,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے۔ موزی کرونا وائرس قابو میں نہیں آ سکا۔ امریکہ اور یورپ میں کرونا کی وار جاری ہیں۔ امریکہ میں 2,28,430، برازیل میں 1,56,000، بھارت میں 1,18,000، میکسیکو میں 88,000، اسپین میں 34,521، فرانس میں 34,210، روس میں 25,525، ترکی میں 9,584، ایران میں 31,650، افغانستان میں 1,510 اور سعودی عرب میں 5,250 اموات ہو چکی ہیں۔ عالمی افق پر کیا ہو رہا ہے آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔ میں ہوں ثنا ارشد۔ کھیل کی سیاست اور کھیل سے کھلواڑ، کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلنٹ، علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک، کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار، میں آپ کو رکھوں گی باخبر۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے
खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आलमी मंजरनामे से आपको बताएं, ट्रंप और जो बाइडन का आखिरी सदारती मुबाहिसा, कौमी सलामती पर एक दूसरे पर इल्जामात। जो बाइडन ने कहा कि रूस, चीन और ईरान अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत कर रहे हैं। जो भी मुल्क ऐसा करेगा इसे कीमत चुकाना पड़ेगी। आखिरी सदारती मुबाहिसा रियासती टेनेसी के शहर नेशवाल्ट में हुआ, जिसमें कोरोना वबा, कौमी सलामती, अमरीकी खानदानों, नस्ल परस्ती, मौसमियाती तब्दीली और कायदाना सलाहियतों के मौज़ूआत पर बात हुई। सदारती मुबाहिसे में ट्रंप ने भारत को खलीज, गंदा और बेहुदा करार दे दिया। जो बाइडन ने कहा कि लोग ट्रंप के दौर में कोरोना के साथ मरना सीख रहे हैं। ट्रंप ने कोरोना वबा पर पैसे नहीं लगाए। जो बाइडन ने ट्रंप पर रूस से पैसे लेने का इल्जाम भी लगाया। सदर ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने रूस से कोई पैसा नहीं लिया। जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका में इदारा जाती नस्ल परस्ती है, जबकि सदर ट्रंप ने कहा कि वो नहीं समझते कि अमरीकी पुलिस में नस्ल परस्ती एक मसला है। जो बाइडन के फैमिली के कारोबार पर दोनों फरीकों में तल्ख कलामी भी हुई। मोदी को बीजेपी के मंशूर पर चलने के बजाय दस्तूर पर चलना चाहिए। साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान बगावत कर दिया। भारतीय झंडा भी उतार दिया। मकबूजा कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने ऐलान बगावत करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारतीय झंडा हटा दिया। इंतहा पसंद मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद करते हुए महबूबा मुफ्ती का कहना था, भारत को बीजेपी के मंशूर पर चलने के बजाय दस्तूर पर चलना चाहिए। जब तक कश्मीरी परचम और आर्टिकल 370 की वापसी नहीं होती, तब तक भारत से कोई वास्ता नहीं। अफगानिस्तान में फौजी चेक पोस्ट पर जंगजुओं ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 20 एहलकार हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सूबे नमरूज की फौजी चेक पोस्ट पर दर्जन भर मोटरसाइकिल सवार जंगजुओं ने धावा बोल दिया। तालिबान के हमले में 20 एहलकार हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए, जबकि अफगान फौज के तर्जमान ने भी जवाबी कार्रवाई में जंगजुओं की हलाकत का दावा किया है। जंगजुओं ने 6 एहलकारों को अगवा कर लिया और जाते हुए अफगान फौज का असलहा और गाड़ी भी अपने हमरा ले गए। अफगान आर्मी ने अपने एहलकारों की बादशाबी के लिए करीबी इलाकों में सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। इटली की मुकामी हुकूमत की जानिब से गैर आबाद गाँव को आबाद करने के लिए 15 लाख दिए जाएंगे। नए आबादकारों को रिहाइश की जगह और माली मदद भी दी जाएगी। इटली के जनूबी इलाके में पहाड़ों की खूबसूरत वादी में मकीनों की तादाद 115 है। 41 की उम्र, 65 बरस से जायद। सिर्फ 13 अफराद 20 साल से कम उम्र के हैं। गांव में खूबसूरत मनाजिर समेत सब कुछ है, इसीलिए गांव को आबाद करने के लिए बड़ी पेशकश की जा रही है। इंतजामिया को 1500 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल भी हो चुकी हैं। तो अब आपको बताएं कि दुबई में दुनिया के सबसे बड़े फवारे अल नखला का इफ्तिताह कर दिया गया है। पाम फाउंटेन 105 मीटर ऊंचा और 14,000 मुकाब फुट वसी है और इसके निचले हिस्से में 3,000 से ज्यादा बल्ब लगाए गए हैं, जिनके रंगारंग रोशनी से पानी के साथ दिल आवेज मनाजिर देखने को मिलता है। जबकि फवारे की तकरीब रोनवाई में कोरोना वायरस की पेश नज़र मास्क पहने सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। अब खबरें खेलों के मैदान से।